एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, मजे में हो और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से. For now, let us solve some three questions. And these three questions I got as a doubt from Somiti. So thank you so much for sending me this question. And I'm really sorry if I pronounced your name not correctly. Again, sorry for that. But yeah, we are going to solve three questions, and all these three are from thermodynamics, or you can say kinetic theory of gases. So from that thermal portion. Okay. So let's start with the very first question. And what is given in here? There is sample of an ideal gas and that is taken through cyclic process ABCA as shown in the figure. You can see from A, let's say it is starting, the system processes, and then to B it is reaching, then from B to C, and then from C to A. So sort of this is cyclic process, right? It rejects 50 joule of heat during the part AB. So AB part को अगर आप ध्यान से देखो, this AB part indicates what? This is what process? While the system is moving from A to B, volume is constant at certain value, right? So this process is your isochoric. ठीक है, ये है isochoric process, and in this process work done has to be zero because volume change is not happening. And in this case, if you go on to use first law of thermodynamics, you will write Q is equal to W plus delta U. So here W is zero, so Q will be equal to delta U, and here Q is what? This is in this step A to B, it is rejecting 50 joule of heat. So in physics, whenever a system rejects heat, that is taken as negative, and whenever heat is given to the system, that is taken as positive. So यहाँ पे 50 joule reject हो रहा है, so you will call that negative. So minus 50 equal to delta U. So you are moving from A to B. B is the final point. So delta U will be UB minus UA. Okay. So this is, I mean, this you can get from this statement. Okay. And does not absorb or reject the heat during process BC. So BC में कोई heat rejection या absorption नहीं हो रहा. What does it mean? It means that this process is adiabatic process, because in adiabatic process Q is zero. ठीक है. So for this process, if you go on to write first law of thermodynamics, you will write that Q is zero. So ये zero हुआ delta U plus W. So work done will be equal to how much? Minus delta U. Is anything given? Chalo. Yes, 40 joule of work is done on the gas during the part BC. So during the part BC, work done is how much? Work is done on the gas. Again, work done on the gas कहने का मतलब this work will be taken as positive. Sorry, it will be taken as negative, because in physics, work done by the system, that is, that system is here gas, so work done by the system is positive, and work done on the system is taken as negative. So here 40 joule of negative work is happening. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? minus 40. ठीक है, and that is equal to minus of delta U. Delta U will be UC minus UB. अब आप इसको solve करोगे. ठीक है, इसको solve करने के बाद what you are going to get? क्या मिलने वाला है हमें बताओ. So minus minus को आप cancel कर दो. UC minus UB, that is second equation we are getting. UC minus UB is equal to how much? 40. Done it. And what is happening in the process C to A? I mean, if you look at it carefully, this is happening at a constant pressure. So this is isobaric process. And in this process, if you go on to write first law of thermodynamics, nothing will be zero. So Q will be equal to delta U plus W. Simple. And nothing is zero over there. ठीक है. What is given here? The heat during BC except 70 joule of heat during CA. And during CA, in this process, Q, we are giving it heat plus 70 joule. ठीक है. So we are giving it, that is why it is plus. If system will reject it, that will be taken as negative. What we are asked, internal energy at A is given, and that is given as 1500 joule. And we are asked what? We are asked internal energies at B and C. देखो, तुमने जो क्वेश्चन मुझे भेजा था ना, इन दैट क्वेश्चन दिस पोर्शन वाज मिसिंग. इंटरनल एनर्जी एट एनी पॉइंट वाज नॉट गिवन. एंड ये दिया होना जरूरी है क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो आप पढ़ते हो ना, उसका हमेशा चेंज पढ़ते हो. इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं पढ़ते. वी डोंट टॉक लाइक व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, है ना, क्योंकि ये वेग टर्म है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डिफाइन. अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी एनर्जी क्या है, तो तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे. अगर मैं बोलूं कि किसी का आई मीन डिटर्मिनेशन लेवल क्या है, किसी का सफरिंग लेवल क्या है, किसी का टॉलरेंस लेवल क्या है,
यू कैन नॉट आंसर इट, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन कि किसी पर्सन को आप कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में रखते हो, ठीक है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द सिचुएशन. सो यू कैन नॉट डिफाइन सच थिंग. सिमिलरली यू कैन नॉट डिफाइन इंटरनल एनर्जी एब्सोल्युटली, बट यू कैन डिफाइन चेंज. इसलिए फर्स्ट लॉ जब आप लिखते हो ना, तो आप लिखते हो कि W प्लस डेल्टा यू लिखते हो, यू नहीं लिखते. चेंज को हमेशा हम डिफाइन करते हैं, ठीक है. सो इस प्रोसेस में हमें ये पता है ए पर इंटरनल, ए पर एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है एक्चुअली. सो रेफरेंस इज गिवन 1500 जूल, ए पर 1500 है. तो बताओ बी सी पे क्या होगा. वी मे बी आस्क्ड लाइक दिस. यहाँ पे हमें एक्चुअली बीसी पे ही पूछा है. सो क्या लिखोगे बताओ. आई मीन ए पर गिवन है ना 1500 जूल. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 में अगर आप 1500 पुट करते हो, यू विल बी गेटिंग बी एज हाउ मच. सो दैट इज -50 इज इक्वल टू हाउ मच, यूबी. This is UB minus UA, that is your 1500. So UB is equal to how much? That is 1500 minus 50, that is your 1450 joule. So this is going to be the answer. अब देखो C point पे क्या होगा. अगर तुम्हें B पता है तो C पे निकाल लोगे ना. 40 equal to UC minus UB. B का वैल्यू अभी अभी आया हमें 1450. So UC is equal to how much? 1490. ठीक है, जूल. सो अगेन ये तुम नहीं कह सकते कि बी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी इतनी होगी, सी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी इतनी होगी हर सिचुएशन में. नहीं. बी एंड सी पॉइंट आर हैविंग दिस इंटरनल एनर्जी ओनली व्हेन ए इज प्रोवाइडेड विद द वैल्यू 1500 जूल. ठीक है. सो यहाँ पे 1500 जूल एक रेफरेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और उसको रेफरेंस मानकर वी आर कैलकुलेटिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी एंड देन or point C in the process. ठीक है. So that is why in your question I said, I also commented there कि that was missing, and actually if it is not given you cannot go on to calculate it. ठीक है. चलो, so this was your answer. Now let's move on to the next question. 1 mole of an ideal gas is taken along the process in which PV some power equal to constant. PV something is constant. Done it. So when PV का single power is constant, then we call it what sort of process? Isothermal. क्योंकि PV is constant means PV को आप क्या लिखते हो? nRT. So PV equal to nRT, that is if PV is constant means T is constant, means isothermal. If PV gamma is constant, adiabatic. If PV का something different power is constant, then we call it polytropic process. और उस polytropic process का जो C define करते, heat capacity define करते, जैसे आपने CV पढ़ा है, CP पढ़ा है, ठीक है. इन जनरल इफ PV टू द पावर x गिवन है और उसके लिए अगर सम कांस्टेंट k है, और इस प्रोसेस के लिए अगर आपको C डिफाइन करना है, देन C को आप कैसे लिखते हो? CV प्लस दिस इज योर R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. ठीक है. डन है. CV को और हम कैसे लिखते हैं? CV को हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. राइट. डन है. चलो ठीक है. सो नहीं, 1 माइनस गामा ना लिखकर इसको गामा -1 लिखो, देन इट विल बिकम नेगेटिव. डन है. सो अभी के लिए देखो ये इक्वेशन हमें सी का मिल रहा है. सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो हीट कैपेसिटी होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर एक्स इज दैट पावर. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ में क्या कहा गया है. देखो सी वर्सेस एक्स का ग्राफ है. डन है. सो यहाँ पे सी है, ये एक्स है. मे बी इन दिस क्वेश्चन ना यहाँ पे ये वाला टर्म थोड़ा कंफ्यूजन कॉज कर रहा है. मे बी टेक इट एज एक्स. Okay, so PVX is equal to constant. Maybe that was the reason you were not able to do it. Maybe. So let's now read the graph. अब देखो यहाँ पे ये 3/2 R का वैल्यू दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? I mean you have drawn graph of C versus X, and that graph is this one and this one, right? And if you extend this graph in this sense, it will somewhere it will somewhere end at this straight line, and that straight line is having a value of 3/2 R. ठीक है. यानी कि जब आप x को infinity ले रहे हो ना, when x tends to infinity, then c tends to 3/2 R. ऐसा दिख रहा है ग्राफ से, क्योंकि इस साइड भी देखो, आप देखो x को बढ़ाते जाओ, तो ये वाला वैल्यू जो है ना, वो किसको टच करेगा? फाइनली 3/2 R को. So when x tends to infinity, we will say c tends to 3/2 R.
नाउ लेट्स यूज द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, x को आप इन्फिनिटी करो तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि c किसके बराबर हो जाएगा, cv उस केस में। डन है, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो c इक्वल टू cv आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया है, 3/2r। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन CV इक्वल टू 3/2R है। इसका मतलब ये कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। द वैल्यू ऑफ C डैश एंड X डैश रिस्पेक्टिवली आर। तो C डैश और X डैश का वैल्यू क्या होगा, C डैश तुम्हारा क्या है, C डैश इज बेसिकली द C इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, और यू कैन से व्हेन X इज जीरो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, सो X को आप जीरो करो, व्हेन यू विल मेक X जीरो इस सी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, सी इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स। सो ऑन द वाई एक्सिस इफ यू वांट टू चेक थिंग्स ऑन द वाई एक्सिस, ग्राफ कुछ ऐसा है इधर की तरफ, है ना। सो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पे x क्या होगा, जीरो। सो x को आप जीरो करो, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cv प्लस r। ठीक है, सो C dash शुड बी इक्वल टू CV प्लस R। इट मीन CV का वैल्यू कितना आया था हमें, 3/2R प्लस R, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, that is equal to 5/2R. So C dash is your 5/2R. This will be the answer for C dash. And one more thing we are asked, X dash. What is X dash? So X dash is the value that we will get when we will put C equal to 0. So आप इस equation में आप C को 0 put करके देखो, अगर आप C को 0 करते हो, what you will be getting? So C is becoming 0 और CV को CV रहने दो, plus r by 1 minus x will become x dash, because when c is becoming 0 x is x dash given in the graph. ठीक है, so minus cv that is minus 3/2r is equal to r by 1 minus x dash, r cancel करो आप, minus 3 plus 3x dash is equal to 2, so 3x dash is equal to 5, x dash is equal to 5/3. So answer should be what, 5/2r and 5/3. Let's check. So 5/2R and 5/3. So this is going to be your answer. So I hope you understood this question. इस question का basic चीज यही था कि for any polytropic process, PV x equal to constant, you should know how you can write specific heat capacity, and that is nothing but CV plus R by 1 minus x. ये होता है तुम्हारा इक्वेशन। इसी का ग्राफ तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे बना हुआ था, ठीक है, और ग्राफ कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा, एंड देन इट इज लाइक दिस, राइट। सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, है ना, ये कुछ ऐसा, और ये वाला लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज द ग्राफ। अब देखो ये जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, व्हेन इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, आई मीन y वैल्यू दैट इज c वैल्यू, व्हेन, नो सॉरी, c विल नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, c इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। देखो व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, c इज टेंडिंग टू दिस लाइन, और इसी लाइन का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ था 3/2r। सो वो तुम्हारा CV आया था क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफ को अगर आप और रीड करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे जो तुम्हारा C का वैल्यू है ना, इन्फिनिटी को जा रहा है, और C का वैल्यू इन्फिनिटी पे x के किस वैल्यू के लिए जाएगा, अगेन यू कैन कैलकुलेट दैट। सो यहाँ पे C का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी कर दो, CV प्लस, और ये वैल्यू इन्फिनिटी तभी होगा जब तुम्हारा 1 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाए, 0, यानी कि x क्या हो जाए, 1। डन है, और x 1 होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हीट कैपेसिटी को होना है इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से सोचो हीट कैपेसिटी को आप कैसे निकालते हो, हीट गिवन पर यूनिट टेम्परेचर राइज पर यूनिट मोल, राइट। So in isothermal case, delta T, there is no change in temperature. So delta T is 0, C will tend to infinity. Okay. So this is this. Now let's move on to the next part. एक और क्वेश्चन है। So ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें वर्क डन निकालना है। So whenever you have to calculate work done under PV graph, I mean area work done, if PV graph is given, then area under PV curve will give you work done, right? और एक चीज और तुमने पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारा कर्व साइक्लिक दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे साइक्लिक दिख रहा है, देखो ए से स्टार्ट हुआ, बी से सी तक गया, सी से डी एंड वापस ए, सो दिस इज अ साइक्लिक कर्व, एंड व्हेन curve is cyclic in a anti-clockwise manner, net work done will be negative, and when this is in
clockwise manner, net work done will be positive. Why this is happening? Because देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन का वर्क डन ज्यादा है rather than that of I mean extension. ठीक है, सो कॉम्प्रेशन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज कॉम्प्रेशन मीनिंग यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, क्योंकि किसी भी सिस्टम ऑफ गैस पे तुम वर्क करो उसका वॉल्यूम कॉम्प्रेस हो जाएगा, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव. एंड इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज क्लोज लूप, वर्क डन इन वर्क डन फॉर कॉम्प्रेशन इज ग्रेटर. जैसे यहाँ पे ही देख लो, ए से सी तक बॉडी कॉम्प्रेस हुआ है, गैस कॉम्प्रेस हुआ है, राइट. सो ए से सी तक वर्क डन क्या बोलोगे आप, ये पूरा, है ना. और देखो सी से डी से ए तक इस रीजन में तुम्हारा गैस क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 2 से 4 हो रहा है, सो बेसिकली वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो कॉम्प्रेशन इज नॉट हैपनिंग, ऑपोजिट ऑफ दैट इज हैपनिंग. एंड इन दिस केस वर्क डन अंडर ग्राफ क्या होगा, देखो सी से डी तक का ग्राफ पोर्शन ये है, एंड वर्क डन अंडर ग्राफ विद द वॉल्यूम एक्सिस विल बी दिस वन. So definitely in extension, work done is less than that of compression. So net work done is what? नेगेटिव. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव आना चाहिए. सो ए और बी तो पहले ही ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा दो. वी नीड टू चेक बिटवीन सी एंड डी. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन. अगर यहाँ पे वर्क डन क्या लोगे, अब मैंने बोला कि अगर तुम्हारा साइक्लिक कर्व है तो वर्क डन एरिया ऑफ दिस साइक्लिक कर्व होगा, ये कंप्लीट होगा, क्योंकि देखो कॉम्प्रेशन का ये पूरा वर्क था और एक्सटेंशन का ये पूरा वर्क था. टोटल वर्क डन के लिए दोनों को माइनस करोगे, यू विल बी लेफ्ट विथ विच रीजन, यू विल बी लेफ्ट विथ दिस रीजन ओनली. सो अगर हमें वर्क डन निकालना है ना, वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस क्लोज कर्व. ओके, सो लेट्स डू दैट नाउ. ये क्लोज कर्व किस चीज का पार्ट है, अगर देखो तो ये एक सर्कुलर पार्ट लग रहा है. सबसे पहले एक काम करो, हमें ये पूरा एरिया निकालना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यानी कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया. तो सबसे पहले बड़े वाले का एरिया निकालते हैं. दिस इज सेमी सर्कल, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लेट्स से इट्स एरिया इज A1 एंड इट्स एरिया इज A2. सो A1 वैल्यू विल बी हाउ मच, दिस इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर तुम बोलोगे, बट इन सच केसेस ना, whenever PV curve seems circular or elliptical, don't go with pi r square. ठीक है, हमेशा लिखो पाई R1 R2, क्योंकि दोनों साइड जो तुम्हारा यूनिट है ना, दैट इज डिफरेंट. आई मीन वन साइड यू आर गेटिंग व्हाट इज दिस, प्रेशर है, दूसरे साइड वॉल्यूम है. ऑलवेज इट इज सजेस्टेड राइट इन दिस मैनर, हाफ पाई R1 R2. अब देखो A1 का वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ पाई. R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 मीन्स एक साइड से रेडियस निकालो, यानी कि वर्टिकल से रेडियस निकालो, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस इज 4 - 2, सो दैट इज 2. R2 निकालो, यानी कि इस साइड से रेडियस निकाल कर चेक करो, इट इज हाउ मच, this whole diameter will be equal to 4 - 2, that is 2. So its half will be how much, 1. So this is this. अब ये हो गया तुम्हारा पाई, ठीक है. और A2 निकालो, अब A2 कितना होगा बताओ. A2 will be how much, A2 will be this portion का एरिया आप निकालो, ठीक है. सो ये कितना आने वाला है तुम्हारा, इसका भी डायमीटर चेक करो, ये वाला वैल्यू, ये छोटा वाला. सो दिस डायमीटर पहले चेक कर लो, ये कितना होगा, 3.5 - 2.5, so that is 1. So radius will be half for this one. And for this vertical portion, if you calculate, this is 1, this is 2, so this is 1. 1 is half, 1 is 1. So half into pi into 1, and 1 is half, right? यस, एंड 1 is 1. सो कुछ ऐसा, यानी कि कितना आया तुम्हारा, पाई/4. अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, पाई प्लस पाई/4, यानी कि कितना आने वाला है, 5 पाई/4. ATM लेटर. ओके, सेम यूनिट में दिया है, वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग. सो दिस विल बी योर आंसर एंड विद द नेगेटिव साइन. व्हाई नेगेटिव, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सो आंसर शुड बी नेगेटिव ऑफ दिस वन, एंड करेक्ट आंसर इज योर टी. I hope you have understood all these three questions, and even if not, if you felt like somewhere you got stuck, you can always let me know in the comment section. Thank you.